लैके लुधियाना में इंडस्ट्रीज़ वालों मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है, जिथे कि साइकिल और ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्रीज़ ने इस बजट को काफ़ी हद तक ठीक दसिया। हॉस्टिंग इंडस्ट्री ने भी कुछ राहत महसूस की है, पर उते ही एक्सपोर्टर्स इस बजट तो नाराज़ दिख रहे हैं। चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीयल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग्स के प्रधान उपकार सिंह आहूजा और महासचिव पंकज शर्मा ने केंद्रीय बजट से काफ़ी हद तक सहमति प्रगट करते हुए कहा कि इन्होंने उन्होंने संस्थावां सहित ਵੱਖ-ਵੱਖ संगठनों के ਵੱਲੋਂ दिए गए प्रस्तावों का असर दिख रहा है। बजट है ये जो चैंबर ने डिमांड की कई ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ 100 ਚੋਂ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੰਬਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੈਂਬਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ MSME ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਸਿਰਫ 7400 ਕਰੋੜ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ 15000 ਕਰੋੜ MSME ਦਾ ਬਜਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਲੋਨ ਮਿਲਣ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸੀ MSME ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੀਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੱਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਆ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਲ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਟੀਲ ਸਕ੍ਰੈਪ ਤੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੀਲ ਦੇ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਆਣਗੇ। ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵਰਕਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋ ਕਾਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਆਣੀਆਂ ਬਟ ਵੀ ਅਜ਼ਿਊਮਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਪੀਚ ਆਫ ਆਨਰੇਬਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਵਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟ MSME ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫਾਸਟਨਰ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਸਟੀਲ ਸਕਰਿਊਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 5000 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਆ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਮਚ ਮੋਰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਜਟ ਔਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਜਟ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, 4 ਮਹੀਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਰਹੀ ਔਰ ਸਾਰੀ MSME ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, MSME ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। पंकज शर्मा जनरल सैक्रटरी CICO। इंडस्ट्री का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है जी इस बजट ਲਈ। इंडस्ट्री इज़ सैटिस्फाइड with this budget. If you ask us, we will give 8 out of 10 marks to this budget. Finance Minister has done good homework and industry has been demanding a lot of sanctions, a lot of subsidies from government. Finance Minister has taken care of in lot of issues. स्टील इंडस्ट्री की जहाँ तक बात है, स्टील के ऊपर उन्होंने एंटी डंपिंग ड्यूटी हमारी डिमांड थी, उन्होंने इंपोर्ट के ऊपर 7.5% उन्होंने इंपोर्ट पे हमें सब्सिडी प्रोवाइड की है विच विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द स्टील। तो हमारी डिमांड थी कार्टलाइजेशन रोकने की, उसके ऊपर उन्होंने काम किया है। एंड दे हैव पुट द थर्स्ट ऑन एग्रीकल्चर ऑल्सो विच इज़ द बैकबोन of all or of our economy. So agriculture के ऊपर थर्ड सेक्टर उन्होंने शो किया है। और ट्रेन्स के ऊपर इफ़ यू लुक एट द रेलवेज़, उन्होंने बोगीज़ के ऊपर एक बहुत ज़्यादा उन्होंने न्यू डेवलपमेंट विल टेक प्लेस। बोगीज़ नए बनाने के ऊपर उन्होंने काफ़ी अपना एक्सपेंडिचर लगाया है। So all in all, the thirst of the focus of this budget is on healthcare, infrastructure and safety एंड MSME ऑल्सो। जैसे कि बताया गया कि MSME का जो बजट था उन्होंने डबल कर दिया है, 7,000 करोड़ से 14,000 करोड़ कर दिया है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। और उसके ऊपर उन्होंने एक जो हमारी बहुत देर से सरकार से जो फोकस थी डिमांड, वो थी कि लो हाउसिंग सोसाइटीज़, लो हाउसिंग कॉलोनीज डेवलप की जाएँ ताकि जो लेबर है जो अनऑर्गेनाइज वे में रहती है, झुग्गी झोंपड़ियों में रहती है, उसको एक boost मिले. So corporate houses can now make their own low cost labor colonies, so which will get a they will get a rebate
in that, so which is also a very positive sign. So मोटा मोटा अगर आप देखें तो ट्रस्ट के ऊपर उन्होंने फोकस किया है। तो ट्रस्ट का जो लिमिट था, जो एजुकेशनल और हॉस्पिटल्स में जो ट्रस्ट काम करती हैं, वो 1 करोड़ से 5 करोड़ कर दिया है, विच इज़ ऑल्सो पॉजिटिव साइन। पीपल कैन पुट इन मनी इन एजुकेशन एंड दे कैन इन्वेस्ट इन, दे कैन पुट इन मनी फॉर charitable hospitals also, which will in turn help to provide health care to a common man. और डिजिटलाइजेशन पे उन्होंने बहुत काम किया है। और जो टैक्स था वो 1 करोड़ से 10 करोड़ उन्होंने वो उसको ले गए हैं इस स्लैब को, विच इज़ ऑल्सो पॉजिटिव साइन। स्टार्टअप्स के ऊपर उन्होंने काफ़ी हेल्प की है कि स्टार्टअप्स का जो मार्जिन मनी था वो 15 से जो 25 से था 10% कर दिया गया है। गवर्नमेंट पिछले कई सालों से स्टार्टअप्स को प्रमोट करने में लगी है, विच दे हैव नॉट बीन सक्सेसफुल सो फार। सो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल हम्बल स्टेप इन दिस डायरेक्शन विच विल हेल्प स्टार्टअप्स टू कम अप। और कुछ और हमारे इश्यूज़ हैं, जैसे कुछ टेक्सटाइल पार्क्स हैं, और लुधियाना पंजाब बीइंग मेन सेंटर ऑफ टेक्सटाइल एंड निटवेयर इंडस्ट्री, तो कोई जो 11 पार्क्स उन्होंने आज अनाउंस किए उसमें पंजाब का नाम नहीं है। मे बी ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजन दे हैव ऑफर्ड इट टू साउथ और ईस्ट। सो वी वुड रिक्वेस्ट इन आवर न्यू रिप्रेजेंटेशन टू पास ऑन वन ऑफ दोज पार्क्स टू पंजाब ऑल्सो। सो मेटल स्टील प्राइसेस डाउन आने से जो हमारे जो बूस्ट है वो मिलेगा, कार्टलाइजेशन टूटेगी, और ये सब चीज़ें हमारे जो गवर्नमेंट ने मानी है, वी आर ग्रेटफुल टू देम। इंश्योरेंस की FDIS फ्रॉम 49 to 74% है। सो ये दीज आर ऑल पॉजिटिव साइंस। एग्रीकल्चर में जहाँ तक बात करते हैं कि एग्रीकल्चर को सरकार ने बूस्ट किया है, एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया है, बट वी वांटेड मोर थिंग्स टू हैपन। जैसे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बनता है पंजाब में, उसके लिए हम चाहते हैं एक सेपरेट पॉलिसी बने, उनको और प्रमोट किया जाए। और इसीलिए MSME के लिए हमारी एक उनको रिक्वेस्ट थी कि R&D में और उसकी जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में वो उन्होंने उसके ऊपर कोई अभी ध्यान नहीं दिया गया है। वो भी हम वी विल सेंड अनदर रिप्रेजेंटेशन टू देम। और एक मॉडर्नाइजेशन स्कीम हम मांग रहे थे, और एक कैपिटल लिंक सब्सिडी स्कीम जो डिसकंटिन्यू हो गया, उसको कंटिन्यू करने के लिए हमारी जो डिमांड थी वो अभी समझते हैं पूरी नहीं हुई है। बिना इन पुरानी स्कीम्स को स्टार्ट किए हुए और बिना कोई MSME को और पुश किए हुए या कोई और उनको इनकरेज करने के लिए स्कीम जब तक नहीं आएगी, तो जो MSME सेक्टर है वो ज़्यादा उठ नहीं पाएगा। और हमने फील किया है कि कोविड के दौरान जो 1 लाख से ऊपर पंजाब का जो MSME यूनिट्स हैं, उसमें से मोर देन 20-25% जो यूनिट्स हैं दे हैव शट डाउन। और एक हमारी बहुत जो स्पेसिफिक डिमांड थी वो थी टू प्रोवाइड ईजी फाइनेंसिंग टू MSME सेक्टर, जो कि नहीं अभी तक वो मानने में नहीं आई है। RBI पासिस ऑन द स्कीम्स, बड़ी अच्छी स्कीम्स लेके आते हैं, लेकिन बैंक्स फेल टू फॉरवर्ड दो स्कीम्स एंड गिव बेनिफिट्स, डायरेक्ट बेनिफिट्स टू द इंडस्ट्री। ये कई सालों से हमारी डिमांड है सरकार से, और वो भी अभी एड्रेस नहीं हुई है। वी वुड रिक्वेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर वंस अगेन कि कोई ऐसा स्पेसिफिक स्कीम, एक स्पेसिफिक कमेटी फॉर्म की जाए कि जो भी बैंक्स को गाइडलाइंस दी जाती हैं, रूल्स दिए जाते हैं, वो इमीडिएटली इम्प्लीमेंट किए जाएँ। इफ़ यू लुक एट द रेपो रेट ऑल्सो, जो भी रेपो रेट सरकार ठीक करती है उसको इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, बैंक्स वो अपने NPS को एडजस्ट करने में लगे रहते हैं, और द बेनिफिट्स आर नॉट पास्ड ऑन टू द इंडस्ट्री। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम चाहते हैं विच आर टू बी फोकस्ड इमीडिएटली, जिसके ऊपर सरकार की अटेंशन इमीडिएटली रिक्वायर्ड है। वी विल टेक अप दोज इश्यूज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम विद द गवर्नमेंट। ओवरऑल इफ यू लुक एट द इन टोटलिटी, दिस इज अ पॉजिटिव बजट विच इज़ प्रो इंडस्ट्री बजट। सर आपका नाम? राम लवाया, वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग्स। सर कैसे समझते हैं बजट पेश किया? बजट हमारे लिए कोई ख़ास नहीं है, स्पेशली एक्सपोर्टर्स के लिए। एक्सपोर्टर्स का तो बिल्कुल टच ही नहीं किया गया। एक्सपोर्टर्स को जो पहले MES मिलता था वो भी बंद कर दिया, और रॉड टैप एक स्कीम नई दी थी उन्होंने, उसका कोई रेट अनाउंस नहीं है। हम एक्सपोर्ट करें तो करें कैसे? एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है एक्सपोर्ट बढ़ाओ, अगर दूसरी तरफ हमारे को GST हमारा रुक जाता है, साल नहीं आता, 6 महीने नहीं आता। और दूसरी बात, हमें कोई इंसेंटिव जो मिलता था MES वो नहीं मिल रहा, वो बंद हो गया है। और रॉ टैप जो है उसकी रेट अनाउंस करने चाहिए, तभी तो हम कैलकुलेशन करेंगे कि एक्सपोर्ट कैसे करें। और दूसरी बात यह है कि GST जल्दी से जल्दी हमारा रिफंड होना चाहिए ताकि हम एक्सपोर्ट कर सकें।
जीएसटी रिफंड नहीं होता, हम लोग बैंक से पैसे लेते हैं, उस पर हमें ब्याज देना पड़ता है। अब अगर ब्याज हम देते हैं तो फिर एक्सपोर्ट हमारी कैलकुलेबल नहीं होती है, वो उसमें हमें एक्सपोर्ट में पड़ता ही नहीं खाता फिर। इसलिए हम कहते हैं गवर्नमेंट को कि एक तो कुछ हम चाहते थे कि इनकम टैक्स में भी हमें थोड़ा बहुत रिलीफ मिले ताकि एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ना तो इनकम टैक्स में कोई रिलीफ मिला, MEIS हमारा बंद कर दिया और रॉड टैप का रेट अनाउंस नहीं हो रहा। इसलिए एक्सपोर्ट बढ़ाने का गवर्नमेंट बिल्कुल ना सोचे, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती ऐसे। यही हमारा कहना है कि जल्दी से जल्दी हमारा GST रिलीज़ किया जाए। और कोविड के बाद जैसे उम्मीद थी कि इंडस्ट्री को कुछ मिलेगा प्रोत्साहन, कोविड के बाद अभी तक तो हमारी लेबर पूरी नहीं हुई है। 50% लेबर से हम काम कर रहे हैं। किसी फैक्ट्री में 60% है, किसी में 75 है, किसी में 50% है। जब तक लेबर हमारी पूरी नहीं आती, प्रोडक्शन पूरी नहीं होती और एक्सपोर्ट कैसे बढ़ सकती है। पूरा जब तक लेबर नहीं आएगी हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकेगी। कुल मिला के कैसा बजट है फिर? मतलब कुल मिला के कोई खास बजट नहीं है। बजट बस खुश करने की कोशिश की है, लेकिन MSME भी खुश नहीं है। एक्सपोर्टर तो बिल्कुल निराश हैं। एक्सपोर्टर्स के लिए कोई नहीं दिया गवर्नमेंट ने। रेट भी इतने बढ़ चुके हैं, एक्सपोर्ट तो बिल्कुल ही ख़त्म होता जा रहा है। हाँ सर, अपना नाम? राकेश जिंदल स्टेल्को इंटरनेशनल चैम्बर। सर हमारा जो एक्सपोर्ट है ये लोहा 20 रुपीज़ kg बढ़ चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमको नुकसान कर रहा है। यदि लोहा 10-15 रुपये किलो डाउन ना आया तो 80% एक्सपोर्टर हैं वो डाउनवर्ड जाएंगे और शायद इंडस्ट्री बंद करने के कंगार पर आके खड़े हो जाएंगे। रणजीव सिंह, जनरल सेक्रेटरी नेटवेयर एंड क्लब, कैसे टेक्सटाइल समय पे बजट आया? ये जो बजट है इसमें हमें इन्होंने मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है वो 7 दिए हैं। वी आर वेरी मच हैप्पी। पहले हमें भी 3 दिए थे, उसमें लुधियाने का नाम था, तिरुपुर था और इसमें कलकत्ता था। इसमें यह है कि हमारे पर मल्टीपर्पज़ सिस्टम्स में हमें ग्रो करने का टाइम मिलेगा इसके बीच में। और गवर्नमेंट ने इसमें काफ़ी कंसेशंस ने जो हमें दे रखे हैं उसके ऊपर हमें काफ़ी स्पीड वर्क करना पड़ेगा एंड आई थिंक सो कि वी विल गोइंग टू गेट ए वेरी गुड रिजल्ट्स। दूसरा जो मैन मेड फाइबर था उसके ऊपर इन्होंने जो ड्यूटी है वो 5% और कम कर दी है। पहले इसके ऊपर ड्यूटी बढ़ा ही रहे थे। ऑन द होल जो बाकी लेबर के लिए क्वार्टर्स हैं, जो इंसेंटिव्स हैं, उसके लिए भी इन्होंने काफ़ी जो यदि हम अपने लेबर को क्वार्टर बना के देंगे तो उसके लिए भी हमें रेंटल में और दूसरी चीज़ों में जो मैन्युफैक्चरर है उनको इंसेंटिव दी जाए। ऑन द होल इस बजट में काफ़ी अच्छी पुशिंग है, मेहनत हमें ही को करनी पड़ेगी। थैंक यू। आपको क्या लगता है जब कोविड जैसे हालात बने हैं उसके हिसाब से कैसा रहेगा? मेरे तो हमने किया, मैं तो PP किट भी आया था, मास्क भी आया था, वो चला, बैठ गया, रुक गया। 3 तरह की क्वालिटीज़ आ गई। डिटर्मिनेशन पता नहीं था हम लोगों को कहाँ पे कैसे टारगेट करना है, इसलिए हम उसमें अच्छा शो करा हमने। पर फिर भी जितनी सक्सेस रेशियो हमें चाहिए थी वो हमने उतनी नहीं हो पाई, पर वी आर अगेन ट्राइंग टू डू दैट वेरी गुड। मास्क हमारा बहुत अच्छा बन रहा है अभी। कोविड के बाद भी हॉज इंडस्ट्री मंदी में है काफ़ी, अभी तक माल भी नहीं बिका, तो क्या लगता है ऐसे? तो उसमें ऐसे था कि हमारे पास वर्किंग टाइम बहुत कम था। बेसिकली रॉ मटेरियल की बड़ी शॉर्टेज थी और रॉ मटेरियल अब की बार महंगा भी कर दिया बहुत ज़्यादा स्पिनिंग मिल्स वालों ने। और वर्कर जो था आया थोड़ा टाइम लेट आया, तो उसको भी यहाँ पर आके एडजस्ट होने में, और जो प्रकोप था सर्दी का वो भी ज़्यादा चला। और जिसके लिए हम लुधियाना नाना जाता है नेटवेयर में, तो नेटवेयर में हमारे जो सर्दी है वो सीधी जैकेट की चली गई। इट वॉज एक्सट्रीम एंड दैट्स व्हाई द जैकेट हैज़ बीन प्रमोटेड इन ए वेरी गुड वे। मतलब अब फ़ायदा मिलेगा लगता है, कुछ उम्मीदें हैं जो? हाँ, जिसमें हमें ये जरूर है कि हमारे जितना नुकसान होना था वो नुकसान हमारा काफ़ी कम गया। अब हम पैरेलल लेवल के ऊपर आ गए। मतलब कुल मिलाकर 10 में से कितने नंबर दे सकते हैं इस बजट को? बजट में तो हम देंगे 5.5%। खबर दिन भर ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਲਹਿਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।